بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ماریہ کا رشتہ اس کے ابو نے حماد کے ساتھ طے کر دیا۔ ماریہ اس رشتے سے ناخوش تھی کیونکہ ماریہ پھوپھو کی بہو نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کزن حماد کو ناپسند تو نہیں کرتی تھی، بس اسے پھوپھو اچھی نہیں لگتی تھی۔ ماریہ امی کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے پھوپھو کے بیٹے سے نہیں کرنی شادی۔ ماں نے سمجھایا، ماریہ تیرے ابو کا فیصلہ ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں کچھ بولوں گی تو تماشا ہوگا، بس اب چپ ہو جا، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے۔ ماریہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آنے دو ذرا حماد کے بچے کو، میں ہی ملی تھی اس کو شادی کے لیے، حالانکہ بھی تو بیٹیاں ہیں، وہ نظر کیوں نہیں آئی؟ ماریہ آنسو صاف کرتے ہوئے ناول پڑھتے ہوئے سوچنے لگی، یہ پھوپھو کا رشتہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، میں تو زہر کھا لوں گی، لیکن کسی صورت بھی حماد سے شادی نہیں کروں گی۔ حماد اتنا پیارا تو نہیں تھا، بس کالا سا رنگ تھا، لیکن با اخلاق اور حلال حرام میں فرق سمجھنے والا لڑکا تھا۔ کچھ دن گزرے، حماد کسی کام سے ماموں کے گھر آیا۔ ماریہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ حماد نے سلام کیا۔ مومانی نے سر پہ ہاتھ پھیرا، کیسے ہو حماد بیٹا؟ حماد مسکراتے ہوئے، مومانی جان میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ مومانی جان نے کہا کہ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا۔ اچھا مومانی جان، امی نے یہ 20,000 روپے بھیجے ہیں، کہہ رہی تھی جو کچھ مہینے پہلے آپ سے ادھار لیے تھے واپس کر رہی ہوں۔ مومانی مسکرا کر کہنے لگی، ارے حماد بیٹا، اپنی ماں سے کہنا اپنوں کے ساتھ حساب نہیں کیا کرتے، تم یہ پیسے واپس لے جاؤ، اور امی سے کہنا ہماری طرف سے عید رکھ لیں۔ حماد بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، شاید اس کی نظر ماریہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ماریہ کی چھوٹی بہن سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ باجی کچن میں ہے۔ اتنی دیر میں مومانی نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ ماموں گھر پہ تھے نہیں۔ حماد کچن میں گیا۔ ماریہ اپنے دھیان میں کھانا بنا رہی تھی۔ حماد نے سلام کیا۔ ماریہ نے سر پہ دوپٹہ اوڑھتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ حماد نے پیار سے پوچھا، کیسی ہیں جناب، میں کچھ مدد کروں؟ ماریہ غصے میں بولی، میرے ساتھ اس طرح کی باتیں نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ حماد نے آگے بڑھ کر ماریہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماریہ کا جسم غصے سے کانپنے لگا۔ حماد میرا ہاتھ چھوڑو۔ حماد مسکرا کر بولا، زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا۔ ماریہ نے چلا کر کہا، میرا ہاتھ چھوڑو حماد۔ حماد بضد رہا۔ ماریہ نے ایک زوردار تھپڑ دے مارا حماد کو۔ حماد حیران تھا، ماریہ کو کیا ہو گیا ہے؟ ماریہ روتے ہوئے کچن سے باہر آئی، امی کو آواز دینے لگی۔ امی جلدی سے نماز پڑھ کر آئی۔ ماریہ نے اپنی ماں سے کہا کہ حماد میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ اتنے میں ماریہ کے بابا بھی آ گئے۔ ماریہ رو رہی تھی۔ بابا نے پوچھا، کیا ہوا میری بچی کو؟ ماریہ روتے ہوئے بولی، میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، حماد آ کر میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ بابا نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، حماد کیا یہ سچ ہے؟ حماد بولا، ماموں جان میں نے تو بس ہاتھ ہی پکڑا تھا۔ ماموں نے یہ سنتے ہی حماد کے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگے۔ دفع ہو جا کتے انسان۔ حماد کو بہت برا لگا۔ ماریہ مسکرانے لگی، اب آیا نا مزہ، اب کرے شادی مجھ سے، دیکھتی ہوں کیسے کرے گا یہ شادی۔ میں پھوپھو کی بہو کبھی بھی نہیں بنوں گی، یہ تو میں نے قسم کھائی ہے۔ حماد گھر گیا، دل ہی بہت اداس تھا، سوچ رہا تھا کہ ماریہ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ۔ حماد نے گھر آ کر اپنی ماں کو کچھ نہ بتایا، بس دل ہی دل میں جلنے لگا، ماموں مومانی مجھے کتنا غلط سمجھتے ہوں گے۔ ماریہ کو کال کی، لیکن ماریہ نے حماد کا نمبر بلاک کر دیا۔ اب کرتا تو آخر کیا کرتا؟ اس بات کو 1 سال گزر گیا تھا۔ آج عید کا دن تھا۔ حماد ماموں کے گھر گیا۔
नजरें झुकी हुई थी। मामू के पास गया। मामू जान माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई थी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मामू ने प्यार भरी निगाह से हमाद की तरफ देखा। मामू का गुस्सा भी खत्म हो चुका था। मामू ने कमर पर थपकी दी। पुत्र, मैं सब समझता हूँ, तू आया कर, तेरा अपना घर है। और हाँ, बस मेरी इज्जत का ख्याल रखना। मारिया से मैं 1 साल बाद मिल रहा था। वो कमरे में बैठी हुई थी। हमाद ने दरवाजे पे दस्तक दी। मारिया ने पूछा, कौन है? हमाद आहिस्ता से बोला, हमाद हूँ। मारिया का गुस्सा अभी वैसे का वैसा ही था। अब क्या काम है? क्यों आए हो यहाँ? हमाद प्यार से बोला कि आज ईद का दिन है, इसलिए मिलने आया था। मारिया को ना जाने क्यों हमाद अच्छा नहीं लगता था। मारिया नफरत अंगेज लहजे में बोली, लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना, चले जाओ यहाँ से। हमाद कुछ कहने लगा, फिर खामोश हो गया। उदासी दिल में लिए घर को चला गया। बहुत परेशान था। मारिया मुझसे शादी नहीं करना चाहती और एक मैं हूँ खुद को उसके कदमों की ख्वाब बनाए बैठा हूँ। हमाद जब भी मारिया को किसी नए नंबर से मैसेज करता, मारिया उसे ब्लॉक कर देती। हमाद क्या करता? उसे कैसे अपने दिल का हाल बताता? एक दिन कॉल की, मारिया प्लीज फोन बंद ना करना, मेरी बस 5 मिनट बात सुन लो। हमाद ने उसे अल्लाह का वास्ता दिया। मारिया गुस्से से बोली, हाँ बोलो, क्या बात है? मारिया, मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत रायगां है, तुम कभी भी मुझे नहीं अपनाने वाली। मैं जितना भी प्यार कर लूं, तुमको ये सब फ्रेब ही लगेगा। मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। मुझे लगा था तुम्हारे साथ शादी करके मुझे सारे जहान की खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन तुम तो मुझे देखना भी गवारा नहीं करती। हमाद हंसकर कहने लगा, मेरा रंग काला है और तुम इतनी प्यारी और गोरी हो। शादी के बाद सब हंसेंगे हम पर। मारिया कहने लगी, शुक्र है कि तुमको ये बात जल्दी समझ आ गई। और हाँ, मैं किसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तुम जैसे गरीब से नहीं, कि जिसके पास गाड़ी भी हो। और एक बात साफ है, तुम्हारी माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। शादी के बाद मुझ पर अपना रूप रखेंगी। हमाद बोला, मारिया ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा, मेरा वादा है तुमसे। मारिया ने अपनी जान छुड़वाते हुए कहा, वैसे अगर तुम अपनी खुद की कार ले लो तो मैं सोच सकती हूँ तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। हमाद किसी भी हालत में मारिया को हासिल करना चाहता था। हमाद बोला, ठीक है, अब की बार आपके घर आऊँगा तो अपनी कार लेकर आऊँगा। मारिया ने फ़ोन बंद कर दिया। पास छोटी बहन बैठी हुई थी। आपी, ये क्या, अगर हमाद भाई ने कार ले ली तो? मारिया हंसने लगी, वो और कार लेगा? 10,000 तो महीने का कमाता है, वो कहाँ से कार ले सकता है? वक्त गुजरने लगा। 1 साल मजीद गुजर गया। ना कार मिली और ना ही कोई अच्छी जॉब। मारिया बहुत खुश थी कि जान छूट गई हमाद से। एक दिन हमाद ने मारिया को फ़ोन किया और कहा, मारिया, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ मगर मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही। मारिया बोली, देखो हमाद, मैं जानती हूँ तुम बहुत प्यार करते हो मुझसे, लेकिन सच तो ये है कि मैं अपनी खाला के बेटे से प्यार करती हूँ। मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं कर सकती। अगर तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया तो खुदा की कसम मैं खुदकुशी कर लूँगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूँगी। हमाद समझ गया था मारिया कभी मुझे नहीं अपनाएगी। फिर यूँ हुआ, हमाद की वो पहले वाली जॉब भी ख़त्म हो गई। इधर जब मारिया को पता चला तो उसे तो मौका ही मिल गया। मारिया ने अब अपनी माँ को भी सीधा सीधा जवाब दे दिया था कि अगर मेरी शादी हमाद से हुई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मारिया की माँ ने मारिया के बाप से हमाद के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगी कि वो कमाता नहीं है, काम चोर हो गया है।
अब शादी के दिन भी करीब थे, मगर बाबा ने ये फैसला किया कि हमाद पहले अलग अपना घर बनाएगा, फिर शादी करेंगे। हमाद की माँ से बात की तो गुस्से से लाल पीली हो गई। भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? आपने पहले तो ये शराइत नहीं रखी थी। वैसे जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर भी तो हमाद का ही है। मारिया के अब्बा कहने लगे, आराम से बोले, बहन आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है। घर अलग बनाएगा तो बेटी दूंगा। हमाद की माँ ने भी गुस्से से कह दिया, मैंने भी ऐसे लालची लोगों में रिश्ता नहीं करना। बस फिर दोनों में काफी झड़प होने के बाद ये मंगनी तोड़ दी गई। हमाद थोड़ा परेशान तो हुआ, फिर वो भी समझ चुका था कि मारिया और उसके घर वाले लालची हैं। मारिया भी तो कहती थी कि उसे किसी अमीर लड़के से शादी करनी है। उधर मारिया खुशियां मनाने लगी कि ये रिश्ता खत्म हो ही गया। कुछ दिन बाद मारिया का रिश्ता अकमल से हो गया और 1 माह बाद शादी थी। अकमल दुबई में काम करता था। मारिया बहुत खुश थी। शुक्र है अल्लाह का कि फूफो से जान छूट गई। फिर 1 माह बाद मारिया की शादी अकमल से हो गई। कुछ माह गुजरे तो एक हकीकत ये खुली कि अकमल दुबई जैसे अय्याश मुल्क में रहते रहते शराब का आदी हो चुका था। वो शराबी था और हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया था। उसी दौरान उधर हमाद ने अपना कारोबार स्टार्ट कर लिया। सर्जिकल औजार बनाने लगा। हमाद दिन रात मेहनत करने लगा। अल्लाह ताला ने उसकी मेहनत का सिला दिया। उसके कारोबार में बरकत हुई। वो लाखों कमाने लगा। हमाद की माँ ने हमाद की एक अच्छी जगह रिश्ता देखकर उसकी शादी भी कर दी थी। जिससे शादी हुई वो लड़की बाइखलाक और हमाद की जैसी काली थी, लेकिन वो किसी शहजादी से कम न थी। उसका इखलाक, उसका लहजा, उसकी वफादारी और उसकी मोहब्बत लाजवाल थी। हमाद आसमा से शादी करके बहुत खुश था। नई कार भी अल्लाह ने अता की, घर भी बना लिया। दूसरी तरफ अकमल शराब के नशे में इतना डूब चुका था कि काम काज छोड़ दिया, बेरोजगार हो गया। घर चलाने के लिए मारिया को प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगी। एक दिन अम्मी के घर आई और रो रो कर अपनी माँ को बताने लगी कि मेरा शौहर ना ही कमाता है और ना ही मुझसे तमीज से बात करता है, और जो मुझे तनख्वाह मिलती है वो भी मुझसे छीन लेता है। नशा करता है, फिर बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अम्मी भी मारिया को कोसने लगी, फिर क्यों छोड़ा था हम्माद को? इतना अच्छा लड़का था, बस रंग ही तो काला था। देख अब हमाद अपनी अम्मी, बीवी और बच्चों के साथ उम्रे पे जा रहा है। मारिया कुछ कह तो ना सकी, लेकिन दिल ही दिल में चीखने लगी और बहुत पछताने लगी। मैं कितनी बदबख्त हूँ, जिद ने खुद को तबाह कर दिया। काश मैं हम्माद की मोहब्बत को सीने से लगा लेती। मैं उसे काला समझती रही, जाहिल, बेरोजगार समझती रही। कौन बताता मारिया को, जो लोग मुखलिस इंसान को रुलाते हैं फिर वक्त उसका इंतकाम ज़रूर लेता है। वो क्या जानती थी, मोहब्बतों की जब बेकदरी की जाए, मोहब्बत भी फिर ख्वार करती है। अकमल रोज उसे शराब पीकर गालियां देता, मारता पीटता था। आखिरकार तंग आकर मारिया ने अकमल से तलाक ले ली। 3 बच्चे भी थे। अब वो अपने 3 बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर रहती है। उधर हमाद अपनी बीवी आसमा का हाथ थामे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहा था। अगर कोई आपके साथ मुखलिस है तो खुदा के लिए ये मत देखो कि ये काला है या गरीब है। वक्त कब बदल जाए किसी को कुछ मालूम नहीं। अल्लाह ताला नियतों का सिला जरूर देता है। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।